let's read from Numbers chapter 13. Numbers. गिनती का 13 अध्याय पढ़ते हैं. From Numbers 13:26 onwards, I will read till 29. 3 verses I'll read, and then Vishaka will read in Hindi also. They came back to Moses and Aaron and whole Israelite community in Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev, and the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. गिनती का 13 अध्याय 26 वचन से. और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और इस देश के फल उनको दिखाए. उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए. उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में यही है. परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं. और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा. दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं. And I'll read verse 33. Last verse. It says, we saw the Nephilim there, the descendants of Anak, come from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. 33 वचन में लिखा है, फिर हमने वहां नपीलों को देखा, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे. You know this story? Israelites and Moses and Aaron, they all are in the wilderness. आपको ये कहानी तो पता है कि मूसा, हारून और सारे इजरायली लोग एक अरण्य में हैं. Okay, and God spoke to Moses and said that from this wilderness I am taking you into the promised land, a land filled with milk and honey. और कैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस जंगल से, इस अरण्य से मैं तुझे इस ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है. दूध और मधु की धाराएं, किती छान वाटते ना? Okay, so remember, God spoke to Moses. Moses received it. Moses told this to his people. और ये याद रखो कि परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने उसको ग्रहण किया और उसने अपने लोगों को ये बताया. Okay. A prophecy comes to you. You receive the prophecy. You tell about this prophecy to people. भविष्यवाणी आपके पास आती है, आप उस भविष्यवाणी को ग्रहण करते हैं और उस भविष्यवाणी के बारे में लोगों को बताते हैं. And you believe in the prophecy. और आप उस भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं. Hello. Yes or no? भविष्यवाणी तुमच्यावर केली जाते, तुम्ही विश्वासणारे आहात, तुम्ही विश्वास ठेवता की नाही भविष्यवाणीवरती? होय. आणि मग ते सांगता की नाही? कळतं लोकांना, मग माझ्याविषयी अशी भविष्यवाणी तुम्ही आनंदाने सांगता जाऊन. Yes or no? Okay, be with me, all right? Be with me. Same thing happened here. यहाँ पर भी वही सेम चीज हुई. So everybody knows, Moses and his people, everybody knows that God is taking us to a place of milk and honey. मूसा और सारे इजरायलियों को ये पता था कि परमेश्वर उनको दूध और मधु की धाराएं बहने वाली जगह पर ले जा रहे हैं. In between, God speaks to Moses and says, take these people and send them as spies, let them go and look around that land and come back with news of what is there inside. और बीच में परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि कुछ लोगों को भेज वहां पर दूध बनाकर भेज कि वो देखे कि वो जगह कैसी है. Okay, so this chapter is about he appointing 12 people
and sending them to Canaan, that is the promised land, milk and honey, a land of milk and honey. And they go there, they spend some time over there, and they come back and give this report. और ये अध्याय में ये लिखा गया है कि मूसा 12 लोगों को भेजता है वो वाचा की जगह पर जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है कि वो देखे उस जगह को और वापस वो उस जगह के बारे में बताने को आए. Alright, so I'm creating a background. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? मैं आपको एक बता रहा हूँ उसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ. So that I'm going somewhere. I'm creating this scene before you. मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ, आपके सामने ये चित्र को रख रहा हूँ. They come from that place. उस वाचा की जगह से वो आते हैं. They see that land is a land of milk and honey. वो ये देखते हैं कि वो जगह दूध और मधु की धाराएं बहने वाली जगह है. But they also see something else. पर वो और भी कुछ देखते हैं. And that is what they are explaining and telling Moses and all the rest of the people. और यही बात है जो वो आकर मूसा और बाकी लोगों को बताते हैं. That is what we read. जो अभी हमने पढ़ा. Okay? And then verse 33, we just read. It says, we saw Nephilim there, and we seemed like grasshoppers in our own eyes. तो 33 वचन में लिखा गया है कि हमने नपीलों को देखा और उनके सामने उनके नजर में हम टिड्डे के समान दिखाई पड़े. टिड्डे, ग्रासहॉपर, नखतोडे किंवा अजून काय? टोळ. बायबलमध्ये अजून एक त्याचं नाव आलंय टोळ किंवा अजून सोलापूरचं नाव काय? चिड्डा. हॅलो, चिड्डा. Okay. So these people are telling, we saw those people, they are so mighty in front of them, we are like चिड्डा. तो ये लोग आकर, ये 12 लोग आकर इस्राएलियों से कहते हैं कि वो लोग इतने नपीलो लोग इतने बड़े हैं कि हम उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं. They are powerful, we are not powerful. वो बहुत सामर्थशाली है, हम तो सामर्थशाली They are नहीं हैं. huge, we are tiny. वो बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे हैं. They are giants, we are grasshoppers. वो बड़े दानव के समान है और हम तो टिड्डे के समान हैं. I want you to read Numbers 14:24. मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े गिनती का 14 अध्याय 24 वचन. This is where it all begins. But because my servant, now God is telling, but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. 24 वचन कहता है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा. All right. So let me tell you, who's Caleb? Caleb is among the 12 spies. तो कालेब कौन है? वो 12 दासों में से दूध जो भेजे गए थे उनमें से एक है. The two from the 12 were Caleb and Joshua. और 12 में से 2 है यहोशू और कालेब. Everybody knows about Joshua, right? सब लोग जानते हैं ना यहोशू के बारे में. No, let's learn about Caleb also. अब हम कालेब के बारे में भी पढ़ेंगे. About Caleb, God says that my servant Caleb has a different spirit. परमेश्वर कालेब के बारे में कहता है कि मेरे दास कालेब के पास और ही आत्मा है. The 12 went to see and they came back. The 10 gave a report of fear. 12 लोग वहां पर गए और 10 उनमें से 12 में से 10 लोगों ने डर का नतीजा लाया, खबर लाई. Oh, we can't go there. We cannot do anything. हम वहां पर नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते. They are giants. वो दानव है. We are like grasshoppers in front of them. हम उनके सामने टिड्डे के जैसे हैं. But then Caleb, पर कालेब, he stood वो खड़ा हुआ and he in front of Moses and he said, "You stop talking all of this. और वो मूसा के सामने खड़ा रहकर उसने कहा, ये सब बातें बताना बंद करो. We can possess the land." हम उस जगह को ले सकते हैं. 12 मधला होता तो 10 लोक सांगितले, बापरे नाही जायचं तिकडं, डेंजर आहे. पण कालेब म्हणाला, नाही, काही जरी असलं तरी आम्ही ते आमच्या हातात आणि आमच्या ताब्यात घेऊ शकतो. Why? God is giving the answer. परमेश्वर यहाँ पर इसका जवाब दे रहा है. God says because Caleb had a different spirit.
परमेश्वर कहता है क्योंकि कालेब के पास अलग आत्मा थी. The title of my sermon today is मेरे संदेश का आज का शीर्षक है A Different Spirit. अलग आत्मा. वेगळा आत्मा, अलग आत्मा, भिन्न आत्मा. एक और ट्रांसलेशन में लिखा है भिन्न आत्मा, एक अलग आत्मा. God is trying to tell that the 10 had something else, but Caleb had a different spirit. परमेश्वर यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 10 दूतों के पास कुछ और आत्मा था, पर कालेब के पास अलग ही आत्मा था. एक अलग ही आत्मा है. हाँ. The other 10 people had a wrong spirit in them, but Caleb had a different spirit in him. जो 10 लोग थे, 10 दूत थे, उनके पास गलत आत्मा थी, पर कालेब के पास अलग आत्मा थी. गलत आत्मा रखो, गलत आत्मा नहीं रखो, अलग आत्मा रखो. हेलो, let's not have wrong spirit, let's have a different spirit. गलत आत्मा नहीं, पर अलग आत्मा हमारे अंदर I know it's confusing, it's very confusing. Everybody said different spirit. कहे अलग आत्मा. हा वेगळा आहे. ऐकलं ना? हे बघा आमेन म्हणलं तुम्ही. हा वेगळा आहे. तसं नाही हा असा कसा असा कसा वेगळा वेगळा. ते 10 लोक. हा वेगळा आहे. कारण कालेबकडं वेगळा आत्मा होता. मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन चांगलं नाही आलंय. काय आलंय तिथं? कालेबकडे निराळी वृत्ती म्हटलंय. नको. Spirit. Let's talk about spirit. See, understand this. Let's read verse 28. 13:28. But the people who live there are powerful. It's okay. काय म्हणायला लागलेत पहा. See, that they are saying the people living in Canaan are very powerful. और यहाँ पर लिखा गया है कि कनानी लोग जो है, जो कनान देश में रहते हैं, वो बहुत ही सामर्थशाली है. Very powerful. बहुत सामर्थशाली. And the word says they were Nephilims. और वो वचन कहता है कि वो नपीली थे. हाँ, Nephilims. नपीली. You know the meaning of Nephilim? नपीली का मतलब पता है आपको? Nephilim is somebody who is unusually huge human. नपीली का मतलब है जो मनुष्य असाधारण रीति से बहुत ही बड़ा है. Unusually huge. जो साधारण नहीं है, असाधारण रीति से बड़ा है. There were those kind of people, very scary people there. वो बहुत ही डरावने लोग थे. Those kind of people were living in Canaan. वैसे लोग कनान देश में रहते थे. Then the spies saw them. और दूतों ने उन लोगों को देखा. And their eyes were focused on them. और दूतों की आंखें उन पर ही लगी रही. And they said, "Oh, they are very powerful." और दूतों ने कहा कि वो बहुत ही सामर्थशाली है. They are very powerful. बहुत सामर्थशाली. But Caleb is not looking at humans. He is not focusing on humans. See, God said to Moses, "Go, send them to explore the land, not people." Hello. कालेब जो है, जो No, God said to Moses, "Tell them, go explore the land, not people." और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों को भेज कि वो देश का निरीक्षण करे, लोगों का नहीं. जगह का निरीक्षण करने का है, लोगों का नाही. जाऊन जागा बघू नये म्हटलंय. यांचं लक्ष कुठे आहे? जागेत राहणाऱ्या लोकांनी. असंच आहे. सोलापूरचे वाटले की नाही ते 10? हॅलो. सांगितलं एक, करायचं दुसरं. God is clear instruction. Go see the land and come back. They are looking at the people staying in the land. परमेश्वर ने जबकि साफ रीति से कहा था जाकर जगह को देख कर आओ, पर वो जाकर लोगों को देख रहे थे. But Caleb, पर कालेब, because he had a different spirit, क्योंकि उसके पास अलग आत्मा था, God said he has a different spirit and he follows me wholeheartedly.
और परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि उसके पास अलग आत्मा है और वो पूरे हृदय से मेरा अनुकरण करता है। पूरे हृदय से मेरा अनुकरण करता है. Because he was following God wholeheartedly, he could follow the instructions wholeheartedly. क्योंकि वो परमेश्वर का अनुकरण पूरे हृदय से करता था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुकरण भी पूरे हृदय से कर पाया. Completely. He saw the land, not the people. उसने उस जगह को देखा, लोगों को नहीं. And that is why he says we can possess the land, not people. Caleb never said it, we can possess the people. और इसीलिए उसने कहा कि हम उस जगह का अधिकार ले सकते हैं. कालेब ने ये नहीं कहा कि हम लोगों पर, वहां के लोगों पर अधिकार पा सकते हैं. See, verse 30 says, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land. और फिर 30 वचन में कहा गया है कि कालेब ने लोगों को शांत किया और कहा कि हम उस जगह का अधिकार ले सकते हैं. किसका अधिकार, कोणाचा अधिकार घेऊ शकतो आम्ही? त्या जागेचा अधिकार आम्ही घेऊ शकतो हा कालेब म्हणतोय. का? कारण कालेबला माहिती आहे, देवाने सांगितले जाऊन जागा बघून ये. मी जाऊन जागा बघून आलो, जागा आम्ही अधिकार गाजवू शकतो त्याच्यावरती. कालेब म्हणाला. लोकांचं लक्ष जागेवर नाही, लोकांचं लक्ष या जहांचं लक्ष कुठे? ते राक्षस कसले मोठे आहे, त्यांनी कसले डेंजर आहेत, त्यांनी असेच आहेत, त्यांनी तसे. आपल्याला काय करायचंय? जाऊन जागा बघून ये. दुधापानाचा प्रदेश आहे की नाही बघून ये. सगळं व्यवस्थित आहे की नाही बघून ये. हो, आम्ही बघून आलो, सगळं व्यवस्थित आहे, आम्ही ती जागा घेऊ शकतो. कोणीतरी आमेन म्हणेल. हालेलुया, हालेलुया. सो आय एम हिअर टू से द रॉंग स्पिरिट विल ओनली लुक ॲट पीपल, but the right spirit or the different spirit will look at territories. जो गलत आत्मा है वो लोगों की ओर ध्यान देगा, पर जो अलग आत्मा है वो जगह जो परमेश्वर ने दी हुई जगह है उन पर ध्यान देगा. Hallelujah. My next point is wrong spirit kills you. Different spirit sustains you. मेरा अगला मुद्दा है कि जो गलत आत्मा है वो आपको मारता है, पर जो अलग आत्मा है वो आपको बनाए रखता है. Wrong spirit kills you. Different spirit sustains you. जो गलत आत्मा है वो आपको मार देता है, पर जो अलग आत्मा है वो आपको बनाए रखता है. Caleb was known to be a man without aging. कालेब एक ऐसा मनुष्य था जिसकी उम्र बढ़ती दिखती नहीं थी. असं म्हणजे जाणला गेला तो की त्याचं वय वाढलेलंच नाहीये. शेवटपर्यंत तो स्वतः म्हणतो, कालेब माहिती का, शेवटपर्यंत तो स्वतः म्हणतो, मी या वयाचा जरी झालेलो आहे तरी माझ्यात मी अजून पण आतमधून अगदी 85 वर्षाचा असताना देखील तो म्हणतो माझ्यामध्ये अजूनही तरुणासारखी ताकद आहे. यू नो व्हाय? बिकॉज ही हॅड अ डिफरंट स्पिरिट. और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास अलग आत्मा थी. He had a different spirit. अलग आत्मा. And about the other 10, what God says, you know, because you believed like this, you will be killed. और बाकी 10 दूतों के बारे में परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा विश्वास किया, आप मारे जाओगे. But Caleb did not believe like that. He will sustain. पर कालेब ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो बना रहा. Caleb and Joshua were the only two people who said, yes, we can go and we can have Canaan. और कालेब और यहोशू ही ऐसे 2 लोग थे जिन्होंने कहा कि हम जाकर उस देश का अधिकार ले सकते हैं. You know, when is all this happening? When is all this happening? क्या आप जानते हैं कि ये सब कब हो रहा है? When they recently came out of the sea. वो ये सब बातें तब हो रही थी जब वो हाल ही में समुद्र से पार हो चुके थे. And they are in the wilderness. और वो जंगल में है. And they are saying, we saw and came, we can go to Canaan. और वो आकर कालेब और यहोशू आकर बताते हैं कि हम देखकर आए हैं, हम उसका अधिकार ले सकते हैं. But the others are not believing. पर बाकी लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे. Do you know how many days the 12 spies were there in Canaan to see all the land and come back? क्या आप जानते हैं कि 12 दूत कितने दिनों तक कनान देश में थे देखकर वापस आने के लिए? 40 days. 40 दिन. Do you know how many years it took for them to reach Canaan? क्या आप जानते हैं कि कनान देश तक पहुंचने के लिए उनको कितने साल लगे? 40 years. 40 साल.
1 year for every 1 day spent in Canaan for these 12 spies. ये 12 लोगों ने जो 40 दिन बिताए उस एक एक दिन के लिए एक एक साल उनको देना पड़ा. Why? Because of disbelief. ये केवल अविश्वास की वजह से है. लक्षात घ्या, आय एम स्पीकिंग मराठी. लक्षात घ्या, मोशे म्हणतोय त्या 12 हेरांना म्हणतोय, जा कनान देश बघून या. हे लोक गेले आणि आले. गेले की नाही? जर खरंच 40 वर्ष लागायचे होते, हॅलो, तर गेले असते 40 वर्षांनी आले असते ना परत. गेले पण आले पण ह्या लोकांना झालं 40 वर्ष लागलं. कसं काय? काही वेळा अविश्वास आम्हाला मागे रोखून ठेवतं. हुक आहे ते, हुक. पुढे जाऊच देत नाही. पुढे जरी गेलो तरी वेगळ्या दिशेने पाठवतात. अविश्वास, भीती. आणि हे 10 लोकांनी पूर्ण इस्रायलच्या लोकांमध्ये ती भीती निर्माण करून ठेवली. अरे बापरे, तिकडं कसं जायचं? अरे बापरे, तिकडं कसं जायचं? अरे बापरे, इतकं की अहरोन आणि मोशे हे देखील त्या प्रदेशात पोहोचू शकले नाही. फक्त 2 लोक. कोण? कालेब आणि यहोशुआ. ते उपस्थित जेवढे होते ना, सगळ्यांनी जे ऐकलं बापरे बापरे म्हणले, त्यातलं एकही व्यक्ती गेली नाही. फक्त 2 लोक, कालेब आणि यहोशुआ म्हणाले, नाही, आम्ही जाऊ शकतो. हे विश्वास ज्यांनी दाखवला, फक्त हे दोघंच आत गेले, बाकीचे लोक गेले नाही. हे आपल्या हातात आहे. इट इज इन आवर हँड्स व्हॉट टू डू अबाउट इट. सो केलेब वॉज लिव्हिंग. ही डिड नॉट डाय. ही लिव्ड टिल ही सॉ द प्रॉमिस्ड लँड. और कालेब मरा नहीं जब तक उसने वो वाचा की जगह पर देखा नहीं, तब तक वो मरा नहीं. बिकॉज ही फॉलोड गॉड होल हार्टेडली. क्योंकि उसने पूरे हृदय से परमेश्वर का अनुसरण किया. जीसस इज टॉकिंग टू पीटर. यीशु पतरस से बात करते हैं. पीटर इज आस्किंग अबाउट जॉन. पतरस यूहन्ना के बारे में पूछ रहा है. व्हाट विल हैपन टू जॉन? यूहन्ना का क्या होगा? पीटर इज आस्किंग जीसस. ये पतरस यीशु को पूछ रहा है. एंड जीसस इज आंसरिंग. और यीशु ने ये जवाब दिया, What if I say he will never die till I come back? क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं वापस दोबारा आने तक वो मरेगा नहीं? And then he says, Peter, follow me. और फिर वो कहता है कि पतरस मेरे पीछे चल. Which means he knew that John followed Jesus wholeheartedly. इसका मतलब है कि यीशु ये जानते थे कि यूहन्ना भी पूरे हृदय से यीशु का अनुकरण कर रहा He था. followed Jesus till the death of Jesus. उसने यीशु के मृत्यु तक उसके पीछे चला. Life sustained. उसका जीवन बना रहा. Amen. Let's go to the next point. अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं. What we think, we become. जो हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं. Turn to your neighbor and say, अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर कहे, उठ. झोपू नको, उठ. खरंच उठवा. खरंच उठवा. हा. What we think, we become. जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं. आम्ही जसं विचार करतो तसेच बनणार. इथं तर असे नारळ फुटायला पाहिजे ना, खरं सांगतो तुम्हाला. We seemed like grasshoppers. हम टिड्डों के समान दिखाई पड़े. Who is telling this? ये कौन कह रहा है? Them only. खुद ही अपने बारे में. ते स्वतःच बोलायला लागलेत, आम्ही टोळाप्रमाणे आहोत किंवा आम्ही चिड्ड्यासारखे लहान आहोत. अगदी चिड्ड्यासारखे लहान आहोत. We are like grasshoppers. They only are confessing about themselves. What you speak or think, you become. जे तुम्ही ऑलराइट ओके. जो जैसा आप सोचते हैं अपने Yeah. बारे में, जैसा आप कबूल करते हैं वैसे ही आप बनते हैं. So this word here, we seemed. और यहाँ पर वो शब्द है कि हम उनके समान दिखाई हाँ, पड़े. समान. This has a Hebrew word which says hayah.
इसका हिब्रू वर्ड है, शब्द है हया। Haya means to become. इसका मतलब है, हया शब्द का अर्थ है कि बनना। That's why I'm saying. We seem like त्यांच्या सारखं आम्ही आहोत, चिड्ड्यासारखं आम्ही आहोत असं आम्हाला वाटलं. ते जे म्हटले ना, ते जे वाटणं नव्हतं ते बनून चुकले होते. कारण हया तिथे शब्दाला आहे. हयाचा अर्थ बनणं आहे, वाटणं नाही. जेव्हा त्याने विचार केला तेव्हा ते चिड्ड्यासारखे झाले. Be careful what you think about yourself. और सतर्क रहो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। Can't do this. मैं ये नहीं कर सकता, You will not be able to do. तो आप ये कर ही नहीं पाओगे। It is too hard for me. ये मेरे लिए बहुत कठिन है, It will be impossible only for you. तो ये आपके लिए असंभव ही होगा। I will fail in my exam. मैं अपनी परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, Fail only. तो फेल ही होगे। What you think, you become. जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बनोगे। Caleb thought we will possess the land. They possessed the land. कालेब ने ये सोचा कि हम उस जगह का अधिकार लेंगे और उन्होंने उस जगह का अधिकार लिया। What are you thinking? आप क्या सोच रहे हैं? You should every day think, I am victorious. आपको हर रोज सोचना है, मैं जयवंत हूँ, I am healed. मैंने चंगाई पाई है, I have the job. मेरे पास काम है, जॉब है, I have that business. मेरे पास वो व्यवसाय है, I am growing. मैं बढ़ रहा हूँ, I am becoming better. मैं बेहतर बनता जा रहा हूँ। Amen. Hallelujah. उगी किरकिरीने कुरकुर करणारे बनू नका. नुसतं भोंगा पसार. नुसता हे आमचं असंच आहे, आमचं तसंच आहे, आमच्याकडे कोण बघतच नाही, आमचं असंच आहे, मला कोण बघायला आलंच नाही, मी ॲडमिट होतो मला कोण आलंच नाही बघायला. अरे तू गार्डन आहे, तू बगीचा आहे, तुला बघायला आला सारखं तिकडं. तुझ्यासाठी घरून प्रार्थना करायला त्याचं काय नाही, बघायला आले नाही. तू सुंदर मेकअप करून बसला होता तिथं हॉस्पिटलमध्ये, तुला बघायला यायला नाही, मला बघायला चालले नाही. नेहमी असंच आहे, तू तसंच आहे. नेहमी काळाच आहे, काळाच आहे तू. And it has become a routine. और ये हर Of our रोज life. की बात हो गई है हमारे लिए, It's become a routine of our. हमारे जीवन की हर रोज की बात हो गई है। We keep confessing wrong things. हम गलत बातों की कबूली देते ही रहते We हैं। look at that company हम उस कंपनी की ओर देखते हैं and we say नहीं होता. और कहते हैं कि नहीं होगा। I went in front of Little Flower Convent High School 1 month in front of the gate. I said, I am getting a job here. मैं 1 महीने तक लिटिल फ्लावर स्कूल के सामने खड़ा रहकर मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर जॉब मिलेगा। 1 month. 1 महीने तक। And one afternoon I was having lunch with my mom. One phone call comes. I am speaking, clerk from school. Please come with your guitar. और एक दोपहर मैं अपनी माँ के साथ भोजन कर रहा था और क्लास से फोन आता है कि आओ जॉब के लिए आ जाओ। 1 month ago I went with my guitar and she rejected me. 1 महीने पहले मैं अपना गिटार लेकर गया था पर उन्होंने मना कर दिया। We have a music teacher. Why you came? हमारे पास म्यूजिक टीचर है, आप क्यों आए हैं? Came back. तो मैं वापस आ गया। I said, okay. 1 month I stood in front of the gate. I am getting this job. I am getting this job. I am getting this job. 1 महीने तक उस गेट के सामने खड़े रहकर मैंने ये कहा कि मुझे ये जॉब मिलने वाला है, मुझे ये जॉब मिलने वाला है। Principal calls me. और प्रिंसिपल का कॉल आता है। I know it is about this job, huh? मैं ये जानता हूँ कि ये जॉब के बारे में ही है। I am asking what happened. और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। Principal is telling. प्रिंसिपल कहते हैं I don't know what happened. From 1 month, my music teacher only didn't came. मैं नहीं जानता कि क्या हुआ पर पिछले 1 महीने से हमारे म्यूजिक टीचर ही नहीं आए। I know the answer मैं जवाब जानता था कि ऐसा क्यों हुआ, because I was praying. क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था। Hallelujah. Oh. What we think, we become. जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। Hallelujah. They were seeing Nephilims, वो नपीलों को देख रहे थे, huge giants. बड़े बड़े दानव। But if you read, go home and read. I don't have time actually. But if you read
they also saw grapes. और अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने वो अंगूर को भी देखे. The size of the angur, I'll tell you. उसका साइज मैं आपको बताता हूँ. They plucked one branch, one bunch. उन्होंने एक घड़े को तोड़ा. हाँ, एक घड़ा, एक घड. तुम्ही बाजारात जाता द्राक्ष घेतलं का विकत? एक घड बघितलं कसं असते, केवढं असतं दाखवा बघू. एवढं असते ना. त्यांनी एक घड तोडलं, त्यात 12 पैकी 2 माणसं लागली एक बांबू मध्ये टाकून ते एक घड लटकून आणायला. झाड आणले नाही, घड आणले. एक घड तोडून आणले. केवढं मोठं होतं. एक बांबू लागला दोघांच्या मध्ये लटकून आणायला. ते बघितले नाही. मोठे राक्षस दिसले त्यांना. देव हे दाखवायला लागले, हे नाही बघत. किती आशीर्वाद मिळायला लागले ते नाही बघत. आकाशला कसा गिटार बघितला हे नाही बघायचं. हॅलो, किती मोठा किती महागडा गिटार परमेश्वराने त्याला दिला हे नाही बघायचं. दुसरंच माझा आजारच मोठा, माझं डॉक्टरचं बिलच मोठं, हेच बघायचं. आय एम टेलिंग यू, वी हॅव टू चेंज आवर मेंटॅलिटी. हमें अपनी सोच को बदलना है. वी विल बी इन अ बेटर प्लेस. हम बेहतर जगह पर जाने वाले हैं. Somebody say amen. Hallelujah. The wrong spirit makes us think on behalf of our enemies. गलत आत्मा जो है वो हमारे शत्रु की ओर से हमारे मन में सोच डालता है. Now they are saying we were like grasshoppers in front of them. यहाँ पर वो कहते हैं कि हम उनके सामने टिड्डे के समान थे. And what else did they say? अजून काय म्हणले माहिती का? We seemed like grasshoppers in our eyes and we looked the same to them. उन्होंने ये कहा कि हम उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और उनको भी वैसे ही दिखाई दे रहा है. मी सांगतो मी काय म्हणायला लागलो. आम्ही स्वतःला चिड्ड्यासारखं आम्हाला दिसलो आम्ही. आणि आम्हाला माहिती आहे त्यांनी पण आम्हाला असंच बघितलं असं सांगायला लागलेत त्यांनी. हे काय? So many times we just work for Satan. कई बार ऐसे होता है कि हम केवल शैतान के लिए काम करते हैं. We are so expert, we want to make things easy for Satan. हम इतने शातिर है कि हमको शैतान के लिए चीजें आसान करना है. ते शैतान म्हणाले, अरे मी अजून विचार पण केला नाही की ह्याने अजून असं करून बसला. मी पण तुझ्याविषयी विचार केला नाही की तू चिड्ड्यासारखा आहे आणि तू स्वतःच विचार करायला लागला तू चिड्ड्यासारखा आहे. आणि मी पण तुझ्याविषयी विचार, अरे मी तर विचार कर, मला तुझ्या हातात तलवार दिसायला लागली, मला तुझ्या हातात म्हणजे मला ढाल दिसायला लागली, मला सगळं तू अगदी म्हणजे ते सगळं आर्मर ऑफ गॉड घातलेलं दिसायला लागलंय आणि तू स्वतःला चिड्डा समजायला लागला. ठीक आहे, चिड्डा. We look the same to them. हम उनको भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं. Thinking from their behalf. उनकी ओर से सोच रहे हैं. From the enemy's behalf. शत्रु की ओर से सोच रहे हैं. They are not even bothered about them. वो शत्रु तो उनके बारे में सोच भी नहीं रहे. And they are thinking, no, they think about us like this. पर ये लोग दूत जो है वो सोच रहे कि नहीं, वो कनानी लोग हमारे बारे में ऐसे ही सोच रहे हैं. Satan is not even thinking about you. शैतान तो हमारे बारे में सोचता भी नहीं है. But you are telling that the Satan is thinking about me like this. पर आप ये कहते हैं कि शैतान मेरे बारे में ये सोच रहा है. So many times Satan doesn't even have to work in your life. तो कई बार तो ऐसा होता है कि शैतान को आपके जीवन में काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. एवढं लागून हॉस्पिटलला गेलं की नाही, मला काय होणार आहे, मी मरणारच आहे, माझं झालंच, माझं सगळं संपलंच, सगळ्यांना बोलवून घ्या. नाही खरंच मला किती परिवार असे माहिती आहे, सॉरी मराठी चांगलं वाटतंय बोलायला, मला किती वेळा असं बघितलं मी परिवारांमध्ये, त्यांनी पण बोलले, डॉक्टर पण बोलवले, सगळ्यांना बोलवून घ्या म्हटले. 4-5 वेळा झालं, ती व्यक्ती अजून जिवंतच आहे.
ते म्हणजे ते नातेवाईक पण थकून गेले यायचं. हे किती वेळा यायचं? एवढंसं काहीतरी झालं की विचारच करून बसायचा. सैतानाच्या वतीने विचार करायचा, मी असाच आहे, मी लहानच आहे, मी हेच आहे, मी तेच आहे. किती ख्रिस्ती लोक असे आहेत, कितीतरी ख्रिस्ती लोक असे आहेत. दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना करायला छाती पुढे असते. When you pray for others, no, you are mighty. जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं आप बहुत बलवान होते हैं Something happens to you, और खुद को कुछ होते ही you're gone. सब चला जाता है. Wrong spirit. गलत आत्मा. I'm telling you, you have a different spirit, not a wrong spirit. मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास अलग आत्मा है, गलत आत्मा नहीं. Amen. Hallelujah. Don't make the devil's work easy by confessing wrong things. गलत चीजों की कबूली कर शैतान का काम आसान मत करो. Amen. Hallelujah. The wrong spirit doubts God's word. गलत आत्मा जो है वो परमेश्वर के वचन पर शक करती है. Didn't God say, I will take you to the land of milk and honey? क्या परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं आपको उस दूध और मधु की धारा बहने वाली जगह पर ले जाऊंगा? Your duty was just to believe. आपका काम बस विश्वास करना था. Somebody told you will be healed. किसी ने आपसे कहा कि आप चंगाई पाओगे. You just have to believe, yes, I'll be healed. आपको बस विश्वास करना है कि हाँ मैं चंगाई पाऊंगा. नाही, आमचं डोकं लावायचं आणि माझं डोकं नाही, थोडं लावतो डोकं, थोडंसं. हे लोक गेले तिकडे जाऊन बघून यायला लागले सगळं काय चाललंय काय नाही चाललंय. राक्षस आहेत, हे असले थोडे मोठे मोठे. अरे बापरे, हिने असे राहतात तसे राहतात, हे लोक आहेत ते लोक आहेत, बापरे, नाही होणार नाही होणार नाही होणार. देव सांगतोय मी देणार आहे तुम्हाला, म्हणजे देणार आहे ना. देवाच्या शब्दांच्या विरोधात जायचं आमच्या ज्ञानाच्या द्वारे, देवाच्या शब्दाच्या विरोधात जायचं. द रॉंग स्पिरिट विल ऑलवेज डाउट गॉड्स वर्ड. गलत आत्मा जो है वो हमेशा परमेश्वर के वचन पर शक करेगी. You know, there were times when I used to think, when somebody used to prophesy over me, I used to think, it's been months, this prophecy has not come to pass. और ऐसा समय था जब कोई मेरे ऊपर भविष्यवाणी करता था तो मैं कुछ महीनों बाद में सोचने लगता था कि इतने महीने हो गए भविष्यवाणी तो पूरी नहीं हुई. Maybe this prophecy was not for me. शायद ये भविष्यवाणी मेरे लिए नहीं थी. You have to keep believing. आपको विश्वास करते रहना है. You cannot cancel the word of God. आप वचन को नकार नहीं सकते. You have to keep believing. आपको विश्वास करते रहना है. Elijah raised his hands and he said, God, send your fire. एलिया ने अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अपनी अग्नि को भेज. And the fire came, sir, immediately. Yes or no? और तुरंत वो अग्नि उतर आई, है ना. From there he went. और वहां से वो चला गया. God has promised, I will send rain now. और परमेश्वर ने ये अभिवचन दिया है कि अब मैं बारिश भेजूंगा. Elijah is praying, एलिया प्रार्थना कर रहा है there will be rain. कि बारिश होगी. He sends his servant, वो अपने दास को भेजता है, go see. जाकर देख Any clouds? कई बादल तो दिख रहे हैं क्या. He comes, no cloud. वो दास वापस आता कहता है नहीं बादल नहीं है. Did he doubt the word of God? क्या एलिया ने शक किया. Did he say, I prayed once and the fire came, I should pray once, the rain also should come? क्या उसने ये कहा कि मैंने सिर्फ एक बार प्रार्थना की तो अग्नि उतर आई और मैं बस एक ही बार प्रार्थना करूंगा बारिश भी तभी होगी. एकदा प्रार्थना केलो आणि झटक्यात आग आली. दुसऱ्यांदा परत एकदा प्रार्थना केलो, झटक्यात पाऊस यायलाच पाहिजे. आलं का? नाही. परत प्रार्थना केली, परत त्याला पाठवलं, परत जाऊन बघतो, होतं का ढग? नाही. किती वेळा केला? 7 times. If Elijah would have doubted the word of God, अगर एलिया ने परमेश्वर के वचन पर शक किया होता, he would have stopped praying. तो उसने प्रार्थना करना बंद किया We होता. have to pray until we get the answer. हमें तब तक प्रार्थना करते रहना है जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता. Hallelujah. We should, amen. Come on, let's clap for Jesus. Come on. Okay. We should define our destiny by what God said, not by what we see. हमारे जो Destiny is, what do you say in Hindi? Manzil.
हमारे मंजिल को Can you repeat? We should define our destiny by what God said, not by what we see. जो हम देखते हैं उससे हमारी मंजिल तय नहीं होती, पर जो परमेश्वर कहते हैं उससे होती है. You see giants, you see whatever. But God said it will happen, it has to happen. अगर आप दानव देखते हैं, चाहे कुछ भी देखते हैं, अगर परमेश्वर ने कहा है वो होगा तो वो होगा ही. Pastor, I will not stay in this house. पास्टर, मैं इस घर में नहीं रहूंगा. Why? When I sleep, I see bhoot. जब मैं सोता हूँ तो मुझे भूत दिखाई देते हैं. Ah, you give that to me. तो वो मुझे दे दो. Ah, give that to us. Give it to Pastor Amit Kedar. We will come. हम आएंगे. सगळे कागदपत्र करा आमच्या नावावर, आम्ही येऊन राहतो. आम्हाला भूत दिसू दे नाहीतर कोण तर दिसू दे, आम्ही तिथं राहणार. Hallelujah. Whatever it is, you have to believe what God has said, not what we see. Amen. चाहे जो भी हो, हमें उस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने क्या कहा है, इस बात पर नहीं कि हम क्या देख रहे हैं. The wrong spirit compares our situation to our strength. जो गलत आत्मा है हमारी जो परिस्थिति है उसको हमारे सामर्थ्य से तुलना करती है. They said, but the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. जो दूत उनके साथ गए थे उन्होंने कहा कि हम उन लोगों पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे ताकतवर हैं. What did they say? They are stronger than we are. उन्होंने कहा कि वो लोग हमसे ताकतवर हैं. Who told you to compare with yourself? तो किसने कहा कि अपने खुद के साथ तुलना करने के लिए? Who told? You have to believe that the battle belongs to the Lord. आपको ये विश्वास करना है कि ये युद्ध परमेश्वर का है. You have to compare them to God, not them to you. आपको शत्रु की तुलना परमेश्वर से करनी है, खुद से नहीं. नाही होत पास्टर, हरलो. तू केला तर हरणारच. नाही होत पास्टर, मला लय त्रास आहे, लय त्रास आहे. असंच म्हणत बसा, असंच म्हणत बसा. We have to compare our situation to God. हमें हमारी परिस्थिति की तुलना परमेश्वर से करनी है. David, when he went in before Goliath, no, जब दाऊद गोलियत के सामने गया, he didn't say I will. He said God will. दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं करूंगा, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर करेगा. Hallelujah. He said, who is this unfilthy? Who is this man filthy? तो ये गंदा व्यक्ति कौन है? Who is abusing my God? जो मेरे परमेश्वर को गलत बातें कह रहा है. He's comparing Goliath and God, not Goliath and him. तो दाऊद जो है वो अपनी गोलियत की तुलना परमेश्वर के साथ कर रहा है, खुद के साथ नहीं. Hallelujah. I'm saying something. मैं कुछ कह रहा हूँ. How we see matters more than what we see. हम जिस तरीके से देखते हैं वो मायने रखता है इससे बढ़कर कि हम क्या देख रहे हैं. आम्ही कसं बघतो हे महत्वाचं आहे, काय बघतो हे नाही. ते 10 लोक काय केले? काय आहे ते बघितले, कसं आहे ते बघितले नाही. कालेब कसं आहे ते बघितला, चांगला आहे का बोल. ह्यानी काय केले? काय 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 ते बोल. कालेब कसं 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 ते बोल. हाऊ वी सी इज इम्पॉर्टंट देन व्हॉट वी सी. हम क्या देखते हैं इससे ज्यादा हम कैसे देखते हैं ये महत्वपूर्ण है. Amen. The wrong spirit fails to see things rightly. गलत आत्मा जो है वो सही चीजें देख नहीं पाता है. It fails to see things rightly. वो सही चीजें देखने में असफल होता है. चुकीचा आत्मा आपल्यामध्ये असेल ना, तर आम्ही नीट बघू शकत नाही किंवा जे योग्य आहे ते बघू शकत नाही. आम्ही 2 गोष्टी होतात त्याच्यामुळे. When we don't see things rightly, 2 things happen. जब हम चीजें सही रीति से नहीं देखते हैं तो 2 बातें होती है. This is what happened here. Now, first, people filled with fear. पहली तो है कि लोग डर से भर जाते हैं. They didn't see things rightly. उन्होंने सही चीजें नहीं देखी. They came and told everything. और उन्होंने आकर सब बता दिया. Because of that, everybody filled with fear. और इस वजह से सारे लोगों में डर फैल गया.
We don't see things rightly in our life. हम अपने जीवन में सही तरीके से नहीं देखते And that is why everywhere there is fear, 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 fear. और इसीलिए हर जगह डर 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 होता है। Second thing, और दूसरी बात है, it led to negative confession. और वो हमें नकारात्मक कबूल करने के लिए उकसाती है। नकारात्मक अंगीकार, negative confession. Oh my God, no, 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 we will never be able to go there. We'll never be able to possess the land. नहीं, Negative हम- confessions. नहीं हम कभी उस जगह पर नहीं जा पाएंगे, उस जगह का अधिकार कभी नहीं ले पाएंगे। ऐसे गलत चीजों का कबूली करते हैं। Numbers 14, 37, 38 says, गिनती का 14 अध्याय 34? 37, 38. This is my last verse and I will stop. It says here, these men who were responsible for spreading the bad report. उस देश की वे नाम धराई। 37, yeah. उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष नाम धराई means they spread bad report. गलत हाँ bad गलत report. बातें, हाँ. बुरी बातें फैलाई उन्होंने। These men who were responsible for spreading the bad report, जो दूत इस गलत खबर को फैलाने के लिए जिम्मेदार थे, they were struck down वो नीचे गिराए गए, मर गए, and died of a plague before the Lord. और उस मरी के वजह से परमेश्वर यहोवा के सामने मर गए। All the 10 people who brought bad report, और सारे लोग जिन्होंने 10 लोग जिन्होंने गलत खबर लाई, they died due to a plague. वो एक मरी की वजह से मर गए। And the word says, और वचन कहता है, of the men who went to explore the land, only Joshua and Caleb survived. और यहाँ पर वचन कहता है कि जो 12 लोग उस देश में गए, उनमें से केवल 2 लोग कालेब और यहोशू ही बच गए, Because they did not spread bad news. क्योंकि उन्होंने गलत खबर नहीं फैलाई। What do you do when you go to your friend's house to have tea? आप क्या करते हैं जब आप अपने दोस्त के घर चाय पीने के लिए जाते हैं? What do you do when you call your friend for chai? आप क्या करते हैं जब आप अपने दोस्त को चाय पर बुलाते हैं? Am I spreading bad report or good report? क्या मैं गलत खबर फैला रहा हूँ या अच्छी खबर फैला रहा हूँ? If you want to be survived, please spread good report. अगर आपको बचना है तो अच्छी खबर फैलाएं। The word of God is the good report. और परमेश्वर का वचन ही अच्छी खबर है। Hallelujah. I'm telling you. Have a different spirit, अपने पास अलग आत्मा रखो, not a wrong spirit. गलत आत्मा नहीं, Have Caleb's spirit. कालेब की आत्मा।